a very important recording, and we know that in this recording the topic is structuralism. So guys, structuralism is the first theory of our NTA NET English preparation, and we know that it is a very important theory as it is the first theory for our preparation for NET English literature. We know that in this we are going to get a lot of things that are going to help us in the further study of the other theories as well. Okay, so let us start. So it believes that the world is organized as structures. What are structures? They are forms made up of units that are arranged in a specific order. Okay, that are arranged in a specific order. These units follow particular rules in the way they are organized or related to each other. Okay, so we can say that structuralism believes that the world is organized as structures or forms made up of units that are arranged in specific order. Okay, so they follow particular rules in which they are organized or related to each other. So structuralism is interested in the relationship, note करेंगे, is relationship between the elements of a structure that results in meaning. Since it believes that meaning is the effect of the coming together of elements, it follows that if we understand the rules governing the relationship, we can decipher the process of meaning production. तो बेसिकली पहले ये रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स के थ्रू फिर ये मीनिंग्स की बात करता है. तो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव अप्रोच है. वेरी इंपॉर्टेंट, डिडक्टिव अप्रोच है. कुछ पहले से ही सेट एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं और डिडक्टिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, थियरी टू एग्जांपल जाते हैं. हम पहले थियरी को समझते हैं, थियरी का बेस लेते हैं और फिर हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं. सो इट इज अ डिडक्टिव अप्रोच इन दैट रिगार्ड. ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा. ठीक, सो इट इज द स्टडी ऑफ structures of text, films, novel, drama, poem, politics, sports, with specific attention to the rules or grammar of the elements. ठीक है, तो उसमें हमारी जो attention है, specific attention किस पर होती है, rules और grammars पर होती है. तो structures में हम ये कह सकते हैं कि they are units arranged in a specific order. देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिकली हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल we are going from theory to example. Okay, we know certain theory or certain rules, and these rules we try to apply on specific examples. ठीक है, so we can say that कि हम इसमें क्या करते हैं कि मीनिंग मेकिंग करते हैं. नोट कर लेंगे मीनिंग मेकिंग. तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में मीनिंग मेकिंग का काम होता है. ठीक है, ये एग्जाम्स में आएगा आपका मीनिंग मेकिंग. इसीलिए हम स्ट्रक्चरलिज्म को जिसने हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में इसके जो फादर माने जाते हैं, या सॉरी इंग्लैंड, या नॉट एग्जैक्टली इंग्लैंड बट लिंग्विस्टिक्स में इन जनरल यूरोप में, तो वो है फर्डिनेंड डे ससूर. ओके, तो फर्डिनेंड डे ससूर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चरलिस्ट हैं जिन्होंने इस थियरी को दिया है. ठीक है, so we know guys that Ferdinand de Saussure has given a very important book called as Course in General Linguistics. Okay, तो Course in General Linguistics ये वर्क है फर्डिनेंड डे ससूर का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हम देखते हैं 1916 में ये वर्क आया है और इसमें फर्डिनेंड डे ससूर ने अपने स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी को रखा है. नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू गिव हियर इज दैट फर्डिनेंड डे ससूर को हम फादर ऑफ जनरली लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, बट फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. हमने बताया था फर्डिनेंड डे ससूर कम्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, सो इज अ स्विस लिंग्विस्ट. बट फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं नोएम चॉम्स्की. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट in modern era. Noam Chomsky is known for transformative grammar, okay, and universal biogrammar. These are the two very important terms given by Noam Chomsky. Okay, please do go through these terms: transformative, generative grammar. Okay, so these are the two important terms given by Chomsky. He was an American linguist. Okay, he is known as father of modern linguistics. Okay, तो अगर हम आगे देखें तो structuralism looks at relationship between the various elements within the self-contained, important word है, well organized structure of a text, understanding the ways by which the text produces the meanings. ठीक है,
सो ऑन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट बाय लुकिंग एट एलिमेंट्स, कैरेक्टर, सेटिंग एंड देयर कॉम्बिनेशन। ठीक ही हो गया, यहाँ पर तो क्लियर ही है। जोनाथन कलर इन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स विद इन अंडरस्टैंड द वेज। ठीक है, यहाँ पर हमने देख ही लिया। जोनेथन कलर ने बार्थ पे एक बुक लिखी है और उसमें वो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में क्या कहते हैं, इट इज एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इन लिंग्विस्टिक टर्म्स, द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ लिटरेरी स्ट्रक्चर्स। Distinctiveness of literary structures, it is the development of a narratology. So we can say कि structuralism से narratology निकला है, so it's a very evident thing that has happened here. Okay, तो structuralism से narratology निकला है, ये हमने देख लिया यहाँ पर। That identifies the constituents of a narrative and their various combination. It's an attempt to show how literary meanings depends upon the codes produced by prior disclosure of a culture. And it promotes the analysis of readers' role in producing meaning. So ये 4 पॉइंट हो गए। एक तो हो गया linguistic distinctiveness, एक narratology, और एक हो गया literary meanings depending upon the codes, बहुत important point हो गया, और एक रोल ऑफ रीडर इन प्रोड्यूसिंग मीनिंग्स। ठीक है, सो ये जोनाथन केलर हो गया। फिर लिंग्विस्टिक टर्म्स, सोसूरियन लिंग्विस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। 1915 में एक्चुअली ये वर्क आया था, फिर 16 में इसको ट्रांसलेशन हुआ है। सॉरी, ये 51 जो है यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको प्लीज चेक कर लेंगे, मैं आपको चेक करके करेक्ट बता दूंगा। ठीक है, 15 में ओरिजिनली लिखा है, 16 में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। प्रपोज दैट लैंग्वेज वाज अ सिस्टम इन विच वेरियस कंपोनेंट्स एग्जिस्टेड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये मेन वर्ड था कि ये डायक्रॉनिक स्टडी है। डायक्रॉनिक स्टडी का मतलब, डायक्रॉनिक स्टडी एक और सिंक्रोनिक स्टडी, सॉरी ये सिंक्रोनिक स्टडी है। डायक्रॉनिक स्टडी का मतलब क्या होता है, वर्ड मीन विद इन अ पीरियड एंड एज अ पार्ट ऑफ द जनरल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, डायक्रॉनिक का मतलब होता है, नोट कर लेंगे सारे बच्चे, हिस्टोरिकल अप्रोच, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच था लैंग्वेज का, जिसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज ओवर द पीरियड कैसे इवॉल्व हुई है। सिंक्रोनिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट लुक्स एट वर्ड्स विद इन द करंट स्टेट ऑफ द लैंग्वेज एंड नॉट एट इट्स हिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सिंक्रोनिक अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पूछा जा रहा है बहुत बार, प्लीज नोट कर लेंगे। इट लुक्स एट वर्ड विद इन द करंट स्टेट ऑफ द लैंग्वेज एंड नॉट एट इट्स हिस्ट्री। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ससूर मेक्स 3 डिफरेंट सिग्निफिकेंट मूव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिवाइड्स इट इनटू 2 मेन कंपोनेंट्स। पहला, जब वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, तो हमने देखा था पीटर बैरी ने भी इनके बारे में बोला है that language is arbitrary, language is relational, and language is constitutional. Very important point, guys. Okay, so it is ARC, okay. So arbitrary के अंदर क्या बोलते हैं वो, set of rules which we combined words into sentence or lang, everyday speech where we used words in particular context, this he called as parole. Okay, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर जो सेट ऑफ रूल्स है उसको हम जो है लैंग बोलते हैं, और फिर उस रूल्स के बेस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटेक्चुअल जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज का, वो क्या है, पैरोल है। देन इन हिज सेकंड मूव, रिलेशनल थ्योरी, जो वर्ड्स एग्जिस्ट इन रिलेशन। ठीक है, हर वर्ड का रिलेशनल मीनिंग है, और मीनिंग ऑफ ईच वर्ड वाज डिपेंडेंट अपॉन द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स। तो यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है मीनिंग, यानी कि हम मीनिंग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी लाइन का या टेक्स्ट का। तो जैसे मैंने बताया था कि एक बहुत फेमस लाइन है हमारे लिटरेचर में, हम कहते हैं दिस टू शेल पास, हम कहते क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो दिस टू शेल पास में हम ये देखते हैं कि इसके 2 कंटेक्सुअल मीनिंग है। इफ अ पर्सन इज हैप्पी, इफ अ पर्सन इज हैप्पी, तो हैप्पी में उसका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। एंड इफ अ पर्सन इज सैड, तो इसमें इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो दिस टू शेल पास, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सो सासुर सजेस्ट दैट वर्ड्स एंड मीनिंग्स, Saussure suggests that words and their meanings are not natural but created through repeated use of conventions. ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा कि ससूर क्या कहते हैं कि वर्ड्स और जो उसके मीनिंग है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं,
और साथ साथ हम मीनिंग्स को खुद कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये लाइन है, दिस टू शैल पास, अगर ये हैप्पी है पर्सन तो इसका मीनिंग अलग होगा, अगर पर्सन सैड है तो उसका मतलब अलग होगा। तो ये फॉर्मूला आप यू हैव टू लर्न, रिमेंबर द फॉर्मूला आर्क, ARC, that in language the meanings are arbitrary, that is we provide the values, that is valueless, arbitrary means valueless or man made, relational we know, and constitutional अभी मैंने बता दिया कि we constitute the meaning। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो Saussure suggests that words and their meanings are not natural but are created through repeated use and convention। ठीक है, repeated use और convention के थ्रू हम देखते हैं कि meanings क्रिएट होते हैं। तो जैसे वो बोलते हैं कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड, यानी कि सिग्निफायर क्या है, साउंड है, फिनेटिक कंपोनेंट है, और वुड मतलब कुछ भी हो सकता है ये, एनीथिंग विच गिव्स द मीनिंग इज कॉल्ड सिग्निफायर। सिग्निफाइड जो मीनिंग हमें समझ में आया है, द रिजल्टेंट मीनिंग और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एज सिग्निफाइड। ठीक है, तो अब यानी कि जो मैंने ऊपर लाइन बोली उसी को हम बता सकते हैं कि जो है आर्बिट्रेरीनेस, रिलेशनल एंड सिस्टमैटिसिटी, सिस्टमैटिसिटी का वही हमने क्या बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज के तीन, कोई भी लैंग्वेज के तीन मेजर फीचर्स हैं। फिर Saussure's ideas, structures and rules were adapted by anthropologist क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, नाम नोट कर लेंगे, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मींस अ स्टूडेंट और द वन हु स्टडीज ह्यूमन कल्चर, जो ह्यूमन कल्चर की स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडियन लिटरेचर में अमिताभ घोष भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो नॉवलिस्ट भी हैं। तो ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन हिस्ट्री के कल्चरल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म के इस कंसेप्ट को रिचुअल्स, मिथ्स और किनशिप्स, किनशिप्स आप समझते हैं कि जिसे नहीं कहते हम जो हमारे रिलेशंस होते हैं खासकर, तो गोत्र हिंदी में कह देते हैं हम लोग, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद फिर जैसे हम देखते हैं कि कंटेंट in a poem or play is depend upon the form in which the themes are expressed। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इसमें ना स्ट्रक्चरलिज्म में हमेशा हमेशा क्या करना है ना, मैं जो जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, दो चीजें होती हैं, एक होता है डिडक्टिव और एक होता है इंडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव और इंडक्टिव ये तो बहुत बेसिक है, अभी मैंने इसी लेक्चर में पहले भी बताया था। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि जनरल टू पर्टिकुलर, यानी G to P, जनरल टू पर्टिकुलर। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है गाइस, P to G, पर्टिकुलर टू जनरल। ध्यान से देखना। तो अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली क्या है, मैंने बताया था डिडक्टिव अप्रोच है, जिसमें हम जनरल टू पर्टिकुलर कुछ बेसिक बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम छोटे स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई करते हैं। ये याद रखना बस कि स्ट्रक्चरलिज्म एक डिडक्टिव अप्रोच है। द इफेक्ट ऑफ अ पोएम ऑफ एन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव बीन अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। सो नो कंटेंट विदाउट फॉर्म, कंटेंट इज अ फंक्शन ऑफ फॉर्म। बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म में हम किस पर फोकस करते हैं, फॉर्म और कंटेंट में क्वेश्चन बनेगा। हम कहते हैं ना लिटरेचर इज इक्वल टू फॉर्म प्लस कंटेंट, साहित्य बराबर भाषा प्लस भाष्य। तो हम फॉर्म और कंटेंट में से फॉर्म पर फोकस करते हैं, इसमें वी फोकस ऑन फॉर्म। तो ये याद रखना कि स्ट्रक्चरलिज्म में नाम से भी क्लियर है, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, हम उसके जो बाहरी रूप है, बाहरी स्वरूप है, उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। So the grammar is the structure of the poem, function like language based on opposition, difference and rationality, relationality. So culture itself has an underlying organization or structure where different elements are combined to generate meaning. तो देखो स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म का अपोजिट याद रख लेना बस। स्ट्रक्चरलिज्म जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम कह सकते हैं कि ऐसे फॉर्मूला 1 अपॉन साइंस में नहीं करते हम, 1 अपॉन डीकंस्ट्रक्शन, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, हमेशा बोलने के लिए ठीक रहेगा सबके लिए। स्ट्रक्चरलिज्म जो है बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डीकंस्ट्रक्शन के। जो हम स्ट्रक्चरलिज्म में हमेशा देखते हैं कि हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, डीकंस्ट्रक्शन में हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। हम क्या करते हैं, P to G, यानी कि हम
जो टेक्स्ट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको तोड़ते हैं और उनके बीच में क्या दिखाते हैं, एक डिसयूनिटी दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। डीकंस्ट्रक्शन में हम क्या दिखाते हैं कि टेक्स्ट की कोई फिक्स्ड यूनिटी नहीं है। तो यानी कि एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म में जहां हम ये कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट का अपना एक मीनिंग है, हम डीकंस्ट्रक्शन में यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या दिखाते हैं कि टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो क्या है, फिक्स नहीं है, यानी कि एंडलेस प्ले ऑफ मीनिंग्स। प्लीज नोट कर लें, एंडलेस प्ले ऑफ मीनिंग्स। हम डीकंस्ट्रक्शन में दिखाते हैं कि कोई भी टेक्स्ट का फाइनल मीनिंग है ही नहीं, अंतहीन है वो, उसका कोई सेंटर नहीं है। यही मेन डिफरेंस है फर्डिनेंड डे ससूर में, और हम कहेंगे कि जेक्स डेरिडा में, यानी डीकंस्ट्रक्शन वाले में। इस पर मेरा एक लेक्चर अभी अभी यूट्यूब में मैंने डाला है, तो डीकंस्ट्रक्शन का लेक्चर अगर आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ ही, तो स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन आपके काफी हद तक साथ साथ ही सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आप इसको बार बार दोबारा से सुन लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चरलिज्म का, जिसको मैंने बताया। प्लीज इस टॉपिक को दोबारा से सुनिए, कई बार सुनिए, और हमारे अभी नेट की क्लासेस में छोटे छोटे मैं लेक्चर्स आधे आधे घंटे के लेकर आ रहा हूँ। इन छोटे लेक्चर्स को आप लोग देखिए और इनको देखकर इनको समझिए, सीखिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इन लेक्चर्स को नोट्स बना लीजिए अपने। जब आप इन लेक्चर्स पे नोट्स बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आप और बेहतर इसमें परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।